We at Dr. Shankar Dayal Sharma. Ji. Sir, we are live now, sir. We at Dr. Shankar Dayal Sharma Institute of Democracy, University of Lucknow, cordially invites you all. It is a matter of privilege and honor today that we are discussing a very important aspect, National Education Policy 2020, implementation and prospects. In this context, today we have great luminaries to discuss on this topic. And in this context, we are deeply honored today that we have our chief guest, Professor Ramashankar Dubey, the Honorable Vice Chancellor of Central University of Gujarat. We have with us a very special guest, a very distinguished student leader and a developmental process leader, Shri Hari Borikarji, the All India University in charge of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. Our Honorable Vice Chancellor, Professor Alok Kumar Raisa, the energy behind our all academic endeavors. The Honorable Vice Chancellor of University of Lucknow. Welcome, sir. With the permission of the chair, I would like to introduce our guest today. To start with our chief guest, sir, Professor Ramashankar Dubey, the Honorable Vice Chancellor of Central University of Gujarat. Prior to it, he served as a Vice Chancellor in Tilka Manjhi Bhagalpur University, Bhagalpur, Bihar, from 2014 to 17, and also as a Vice Chancellor of Guru Ghasidas University, Bilaspur, Chhattisgarh, from 2008-2009. He has served as a Professor of Biochemistry at Banaras Hindu University for over 20 years. He possesses an excellent academic record with MSc degree in Biochemistry from Banaras Hindu University in 1976, standing in first order in merit, and PhD degree in Biochemistry from BHU in 1980. Professor Dubey has an extensive experience of 43 years and 36 years of experience in teaching. He has an extensive record of publishing papers nationally and internationally. Professor Dubey has published 157 scientific articles and book chapters in reviewed journals and books across the world with 12,500 citations. His research specialization is in biochemistry with major emphasis on stress metabolism in crop plants, bacterial enterotoxins, and enzyme technology. Professor Dubey is the recipient of so many national and international awards in plant biochemistry and biotechnology, including Banaras Hindu University Medal in 1976, ICSA Young Scientist Award in Agricultural Science in 1982, Swedish Institute Fellowship in 1989, and Japan Society for Promotion of Science Fellowship in 1998. He has been member of so many governmental bodies. We welcome you, sir. Thank you very much that you have come here for a very important discourse. We have another very distinguished and special guest today with us, Shri Hari Borikarji, the All India University in charge of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. He has completed his education as BCom and DBM. He has been working in ABVP for over 30 years. He has a distinguished experience of working across country for student welfare and student development. Shri Hari Borikarji has an organizational secretary for ABVP Vidarbha. He has been state organizational secretary for ABVP Jammu and Kashmir. He had been regional organizational secretary for ABVP Northeastern Region. He had been national general secretary of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad for over 2 years before taking a responsibility of All India University in charge, and is a very renowned social activist. We very welcome you heartily, sir, in this national webinar on the topic National Education Policy 2020. Our Honorable Vice Chancellor, sir, I would request you to kindly inaugurate the webinar, sir. Thank you, Dr. Chachad. Most respected Professor Dubey sir,
Honorable Vice Chancellor, Central University of Gujarat, who happens to be my senior and a guardian to me in many respects. और आज का एक विशेष दिन भी है कि आज पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती है और इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए ऐसा एक कार्यक्रम, और न सिर्फ कार्यक्रम बल्कि उस कार्यक्रम में प्रोफेसर आर.एस. दुबे साहब जैसे व्यक्ति का मुख्य अतिथि होना, ये अपने आप में बहुत सारे अर्थों को प्रेषित करता है। तो हम लोग बहुत बहुत गर्वान्वित हैं सर। कई दिन से हम लोग इस कार्यक्रम में थे कि आपकी जब तक फिजिकल उपस्थिति नहीं हो रही है तब तक वर्चुअल उपस्थिति से ही सब काम चलाएं। हम लोग की हार्दिक इच्छा है कि सर आपकी फिजिकल उपस्थिति भी हो, जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होती हैं हम चाहेंगे कि आप अपनी फिजिकल उपस्थिति से हमारे विश्वविद्यालय को, हमारे छात्रों को, हमारे टीचर्स को, सबको अपनी मेधा से आलोकित करें। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है सर लखनऊ विश्वविद्यालय में। हमारे दूसरे गेस्ट श्रीहरि जी, मेरा बहुत लंबा संबंध नहीं है लेकिन जितना भी है वो बहुत आकर्षक है। तो शारीरिक रूप से भाई साहब जितने आकर्षक हैं और देखने में हीरो जैसे तो दिखते ही हैं, लेकिन उतना ही डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड, जो जमीन पर विषयों की समझ है। और इसीलिए कोई संस्था इन जैसे मनीषी को पाके अपने आप को आनंदित महसूस करती है, क्योंकि वो जमीन के विषयों के प्रति जानकारी और सकारात्मक रूप से कोई परिवर्तन व्यवस्था में किया जा सके, ऐसा यदि कुछ लोग हिंदुस्तान में हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं, उसमें श्रीहरि जी जैसे लोग भी हैं। आज ही दीनदयाल जी की जन्म जयंती से लेकर पूज्य महात्मा गांधी की जन्म तिथि तक लखनऊ विश्वविद्यालय में एक महत्वाकांक्षी स्वच्छता सप्ताह हम मना रहे हैं 25 तारीख से 2 अक्टूबर तक। और आज सुबह ही स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट और हमारे नेशनल सर्विस स्कीम, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आज सुबह एक बड़ा श्रमदान का कार्यक्रम किया गया है। और हम सब जिस भी रूप में थोड़ा ज्यादा जिसको जितना समय है वो उसको कर रहा है। तो इस तरह के सकारात्मक प्रयासों से छात्रों में सकारात्मक ऊर्जा हो आए, उनका सर्वांगीण विकास हो, समाज के प्रति उनके अंदर एक चेतना का भाव भी आए, एक जिम्मेदारी का भाव भी आए, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान महज कोर्स करिकुलम प्रेषित करने का एक माध्यम न बने, ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन न रह जाए, ये एक विश्वविद्यालय हो जो एक वैश्विक सोच बच्चों के अंदर प्रेषित कर पाए। इस जैसे विचार के लिए हिंदुस्तान भर में अपना योगदान, सकारात्मक योगदान करने वाले श्रीहरि जी वैसे का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आप दोनों के उद्बोधन को सुनने के लिए वी ऑल आर ईगर। इंटरेस्टिंगली प्रोफेसर दुबे का एरिया बायोकेमिस्ट्री है, तो साइंस है, और इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में साइंस के बारे में, रिसर्च के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में एक बहुत नई सोच की चर्चा की गई है। मुझे लगता है दुबे सर हम लोगों को उससे अवगत कराएंगे, और छात्रों के पर्सपेक्टिव से, समाज के पर्सपेक्टिव से, और संस्था एज अ मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हम लोगों का ज्ञानवर्धन करेंगे श्रीहरि जी। तो हम बहुत बहुत ईगर हैं। पहले तो आप दोनों लोगों का विश्वविद्यालय के इस वेबिनार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और मेरी निजी ओर से भी। और आप सबके विचारों को हम लाइव वेबकास्ट भी कर रहे हैं इसके बाद इसको हम अपने यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे भी रखेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि डिजिटल डेटा इमॉर्टल होता है, तो आप जो भी कहेंगे वो आगे आने वाले हर समय के लिए वो इस डिजिटल दुनिया में रह जाएगा। तो उसे तमाम लोग जो उसको सुनेंगे, देखेंगे, उससे लाभान्वित होते रहेंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके विचारों के प्रति को सुनने के लिए हम सब बहुत बहुत आकांक्षी हैं। आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत। Thank you very much, sir. Now I would like to request our chief guest, the Honorable Vice Chancellor, Professor Ramashankar Dubey, sir,
to kindly enlighten us on the topic, sir. Sir. आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय भाई साहब श्री हरि बोरकर जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुत ही ऊर्जावान और गतिशील कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, डॉक्टर वरुण छाछर जी, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अतिथिगण, श्रोतागण तथा सभी छात्र बंधु, ये आज बड़ा ही सुखद संयोग है कि आज ही के दिन 25 सितंबर 1916 को भारत के महान चिंतक आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने व्यक्ति के विकास के लिए एक अवधारणा रखी थी एकात्म मानव दर्शन का, कि मनुष्य एकात्म है, यह व्यक्ति एकात्म है। और हमारे जितने मनीषियों ने शिक्षा के आदर्श के बारे में परिकल्पना की थी, चाहे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हों, आचार्य अरविंद हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, सबने ये परिकल्पना की थी कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं होता, केवल नॉलेज इंपावरमेंट नहीं होता। शिक्षा का अर्थ होता है सर्वांगीण विकास, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास। ये समग्र विकास जब हम कहते हैं तब हम शिक्षा के विकास की परिकल्पना को, अवधारणा को पुश करते हैं। और माननीय दीनदयाल जी का भी मानना था कि मनुष्य का शरीर एकात्म है। मनुष्य का शरीर केवल उसका भौतिक शरीर नहीं है, शरीर मन, बुद्धि और आत्मा से मिला हुआ शरीर है, और ये शरीर एकात्म है। जब हम शरीर के विकास की बात करते हैं तो हम शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबके विकास की बात करते हैं, तब जाकर के ये शरीर के विकास की बात करते हम सोचते हैं। और यही शिक्षा की भी हमारी अवधारणा रही है। जो भारतीय दृष्टि हमारी शिक्षा की दृष्टि रही है, वो उसमें नॉलेज एम्पावरमेंट, बौद्धिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास यानी नैतिक विकास शुरू से ही रखा गया है। और यही हमारी पद्धति है, यही हमारा भारतीय दर्शन है, जो कि हजारों वर्षों से हमारे इस दर्शन की अवधारणा चल रही है कि हम बौद्धिक विकास को आध्यात्मिक विकास के साथ लेकर के चलते हैं, तभी हम संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं। यह हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 जो सरकार के द्वारा जो लाई गई जो शिक्षा नीति है, 2020 की शिक्षा नीति, वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में तो पहली शिक्षा नीति है इस प्रकार की, जो कि बच्चे को बाल्यकाल से ही बच्चे को उसकी मातृभाषा से, उसकी मातृभूमि से जोड़ने का प्रयास करेगी और करती है। या हम यूं कहें कि सन 1835 में जो मैकाले की शिक्षा नीति थी, जिससे कि इंडियन एजुकेशन कमीशन के तहत जो दूसरी भाषाओं को हमारे यहाँ प्रारंभिक भाषा का माध्यम रखा गया, उसको दरकिनार करते हुए ये ऐसी एक शिक्षा नीति आई है कि पहली बार हमारे छात्रों को बाल्यकाल से ही उनकी अपनी मातृभाषा से और अपनी मातृभूमि से जुड़ने के लिए प्रेरणा देती है। यह वह शिक्षा नीति है और व्यक्ति के, छात्र के संपूर्ण विकास की बात करती है। जो हम केवल अभी नॉलेज एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, बौद्धिक विकास की बात कर रहे थे, उससे हट करके सर्वांगीण विकास की बात, होलिस्टिक डेवलपमेंट की परिकल्पना हमारे जो शिक्षा शास्त्रियों ने किया था, भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने किया था, उनकी दृष्टि के अनुकूल यह शिक्षा नीति बनी है, जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है। ये ध्यान दें तो वर्ष 3 वर्ष के बाद ही जब छात्र जब बड़ा होता है तो उसको विद्यालय में लाने की बात कही गई है। अब तक इसके पहले किसी भी सरकार ने ये कल्पना नहीं की थी कि 3 वर्ष के बाद से लेकर के 5 या 6 वर्ष के बीच के बालक का क्या होगा। ये पहली बार इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह बात लाई गई है कि 3 वर्ष के बाद से ही बच्चे को हम विद्यालय में लाएंगे, क्योंकि ये वैज्ञानिकों के द्वारा भी यह सर्वमान्य तथ्य है कि बच्चे के ब्रेन का विकास, उसके मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया 3 वर्ष से ही प्रारंभ होनी शुरू हो जाती है। इसलिए ये फाउंडेशन एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, एजुकेशन हो और उसमें फाउंडेशन एजुकेशन
मातृभाषा में हो, यह तो अनिवार्य है। उसके साथ साथ कक्षा 8 तक या उसके आगे भी जहां तक संभव हो मातृभाषा में पढ़ने का प्रावधान है। तो इससे जो 3 लैंग्वेज की फार्मूले की बात है, निश्चित रूप से बच्चे के अंदर, लड़के के अंदर अपनी मातृभाषा के प्रति झुकाव बढ़ेगा। और यह भी एक सर्वमान्य तथ्य है कि हम जब चिंतन की प्रक्रिया की बात करते हैं, सोचने की बात करते हैं, तो चिंतन की प्रक्रिया हमारे अपनी भाषा में शुरू होती है। मौलिक चिंतन की प्रक्रिया का विकास मस्तिष्क में अपनी भाषा में शुरू होता है। इसलिए अपनी भाषा से जुड़ाव के साथ साथ निश्चित रूप से छात्र के अंदर भी कौशल का विकास होगा, छात्र के अंदर भी सीखने की प्रक्रिया बढ़ेगी और उसके अंदर उसके मस्तिष्क का विकास त्वरित गति से होगा जब वो अपनी मातृभाषा में अध्ययन करेगा। तो हमारी जो भाषाएं हैं, देश की भाषाएं हैं, भारत की भाषाएं हैं, वो भारतीयता की उपज है, वो भारत की अस्मिता की पहचान है हमारी भारतीय भाषाएं। और इन भारतीय भाषाओं में हम जब न्यूमेरिकल्स करें, मैथमेटिक्स करें या भारतीय भाषाओं को पढ़ें या विज्ञान को पढ़ें, तो निश्चित रूप से मस्तिष्क में ग्राह्यता बढ़ेगी और बच्चे के कौशल का विकास होगा। तो 5 वर्ष तक इसमें फाउंडेशन एजुकेशन की व्यवस्था की गई है और 6ठी कक्षा से इस स्किल ओरिएंटेड कोर्स, कौशल युक्त कोर्सेज के अध्ययन की बात की गई है और व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन की बात की गई है। और निश्चित रूप से हम विद्यालय स्तर पर या फाउंडेशन कोर्स के लिए ऐसे शिक्षकों की व्यवस्था करनी होगी जो कि शिक्षक अपनी मातृभाषा में तो निपुण हों, उसके साथ साथ वो ज्ञान विज्ञान में और शिक्षा देने में भी वो निपुण हों। जो उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, जिस उद्देश्य को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, बच्चों में फाउंडेशन एजुकेशन देने के लिए, फाउंडेशन लिटरेसी देने के लिए, वो कैपेबिलिटी हमको शिक्षकों में डेवलप करनी होगी, शिक्षकों में लानी होगी। और उसके साथ साथ हमको ऐसे शिक्षक भी पैदा करने होंगे, उनको प्रशिक्षण दे करके कि जिनका भारतीयता से जुड़ा हो, भारतीय मूल्यों से जुड़ा हो, उनके भारतीय संस्कृति के जो मूल आधार हैं, जो स्तंभ हैं, वो उनको वो अपने अंदर आत्मसात कर सकें। जैसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने छात्रों से कहते थे, सत्येन ब्रह्मचर्येन व्यायामेनाय विद्या देशभक्त्या आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। तुम सम्मान के योग्य तब होगे जब तुम सत्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और तुम के अंदर, तुम्हारे अंदर देश प्रेम की भावना हो। तो देश प्रेम की भावना पहले हमको शिक्षक के अंदर में लाना पड़ेगा। हमारे भारतीय जो मूल्य हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, जो भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं, इन मूल्यों को हमको अध्यापकों में आत्मसात करना होगा, क्योंकि अध्यापक ही छात्र के लिए रोल मॉडल होते हैं। इसलिए उस प्रकार के हम अध्यापक को तैयार करना, इसके इम्प्लीमेंटेशन में एक हमारे सामने वो चुनौती है जिसका सामना हमें सब मिल करके करना है। और जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी आ जाती है हम अध्यापकों के लिए कि जिस प्रकार अध्यापक रहेंगे उसी प्रकार से हम समाज में हम छात्रों का निर्माण करेंगे, छात्रों का सृजन करेंगे। हमारे यहाँ कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को परम ब्रह्म कहा गया है कि गुरु छात्र का, क्योंकि परम ब्रह्म किसी जीव का सृजन करता है, उसी प्रकार हम अध्यापक है, अध्यापक भी छात्र का सृजन करता है। रॉ मटेरियल है छात्र और उसको सृजन करके ला देता है। इसलिए उस प्रकार के अध्यापकों का निर्माण हमें करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब विद्यालय शिक्षा की हम बात करते हैं, कौशल युक्त शिक्षा की बात करते हैं, स्किल एजुकेशन की बात करते हैं, जिसकी व्यवस्था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 6 के बाद से है कि क्लास 6 के बाद हम उसको फाउंडेशन एजुकेशन लेने के बाद हम स्किल एजुकेशन देंगे और वोकेशनल एजुकेशन देंगे। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि हमको अपने टीचर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा उस तरीके से कि जो वोकेशनल एजुकेशन हमारे छात्रों को दे सकें। तो वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग करने की व्यवस्था हमें अध्यापकों को करनी पड़ेगी, अध्यापकों में करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ ट्रेंड वोकेशनल एजुकेशन देने वाले हैं, खास करके मान लीजिए फैक्ट्री से, समाज के विभिन्न वर्ग से कौशल युक्त जो लोग हैं, उन लोगों को भी हमको विद्यालयों से जोड़ना पड़ेगा ताकि वो लोग भी हमारे बच्चों को शिक्षा दे पाए। क्योंकि कभी कभी ये संभव नहीं है जरूरी कि अध्यापक ही सारे स्किल्स की शिक्षा दे सके, अध्यापक ही सारी वोकेशनल एजुकेशन की शिक्षा हमारे छात्रों को दे सके। तो उस केस में हमको
प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेटर्स की जरूरत पड़ेगी, प्रोफेशनल स्किल एजुकेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो उन लोगों को हमको लाना पड़ेगा और अपने करिकुलम इस तरह से करना पड़ेगा कि उन लोगों को भी लाएं और विद्यालय स्तर पर हम शिक्षा दे सकें। इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही ये घोषणा की गई है कि एनसीईआरटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे देश के स्तर पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करें सारे विद्यालयों के लिए, और वो डेवलप करें रीजनल लैंग्वेजेस में। और ये भी कहा गया है कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं देश के स्तर पर, वो आगे आकर के इसमें लीड लें। तो जो हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय हैं पूरे देश के स्तर पर, उनको इसमें आगे आकर के अग्रणी भूमिका निभानी पड़ेगी। तो और जल्द से जल्द वो इस प्रकार के अपने करिकुलम का पाठ्यक्रम का निर्माण उनको करना होगा। केंद्रीय विद्यालयों को आगे आकर के एनसीईआरटी के गाइडलाइंस के तहत वो करिकुलम तैयार होंगे। तो पहले जो केंद्रीय विद्यालयों के अंदर पाठ्यक्रम तैयार होगा स्कूल लेवल का, उसके बाद हर राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होगी। और बहुत से राज्य सरकारों ने काम करना शुरू कर दिया है। बहुत से राज्य सरकारों ने टास्क फोर्स बना लिया है कि स्कूल लेवल में करिकुलम हमारा किस प्रकार का बनने जा रहा है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के गाइडलाइंस के तहत। तो ऑलरेडी काम इसमें आगे चल रहा है। वो आवश्यकता है कि जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं सबकी भागीदारी की, सब लोग इसके अंदर भागीदारी करेंगे तो निश्चित रूप से ये विद्यालय का करिकुलम जो तैयार होगा वो निश्चित रूप से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त करेगा, ताकि आगे लड़के इसमें पढ़ करके विद्यालय फाउंडेशन एजुकेशन लेंगे, उसके बाद स्किल एजुकेशन लेंगे, वोकेशनल एजुकेशन लेंगे, और इस प्रकार पूरा सेकेंडरी एजुकेशन वो कंप्लीट करके फिर वो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर हायर एजुकेशन के अंदर एंट्री का सवाल है, तो इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की व्यवस्था की गई है कि पूरे देश के स्तर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगी। मगर प्रारंभिक काल में तो अभी यूनिवर्सिटीज की अपनी जिम्मेदारी दी गई है, स्टेट यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी। और जहां तक कि हम सबको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का अभी भी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है, मगर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का अपना अभी अलग अलग है। तो कुछ सालों में, आगे आने वाले सालों में इस प्रकार की व्यवस्था होगी कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने से कई प्रकार के फायदे होंगे। गार्जियंस को फायदा होगा, स्टूडेंट को फायदा होगा कि एक जगह वो और कहीं भी एडमिशन ले सकेगा। तो इसके लिए सारे विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी बनेगी कि अपना जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, हमारा अंडर ग्रेजुएट लेवल के करिकुलम है, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के करिकुलम है, वो करिकुलम को हमको अपडेट करना होगा एक नेशनल गाइडलाइन के अंतर्गत। जो कि नेशनल पॉलिसी है उसको गाइडलाइन मानते हुए हमको अपने करिकुलम को अपडेट करना होगा। करिकुलम को हमको बनाना पड़ेगा, कंप्लीटली हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा अभी जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है, अभी 10+2+3 के अंतर्गत हमारा करिकुलम चल रहा है, डिग्री करिकुलम या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेज का करिकुलम उस प्रकार चल रहा है। मगर अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो अंडर ग्रेजुएट की हमारी पढ़ाई है और उसमें 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट डिग्री का प्रोग्राम है, और 4 इयर्स में पहले साल में यदि लड़का एडमिशन लेता है और पहले साल में यदि लड़का निकल जाता है एडमिशन लेकर के पढ़ने के बाद, तो उसको हमें सर्टिफिकेट देना होगा। 2 साल में निकलता है तो उसको डिप्लोमा देना होगा, और 3 साल में निकलता है तो उसको डिग्री देनी होगी। बीएससी की डिग्री हम 3 साल में दे सकते हैं, और यदि वो 4 साल तक की पढ़ाई करेगा तो उसको बीएससी की डिग्री विथ रिसर्च देने का प्रोविजन है। तो चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हर साल इसमें एंट्री और एग्जिट का प्रोविजन है, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का प्रोविजन है, तो उसके मुताबिक हमको अपने करिकुलम को भी बनाना पड़ेगा। और करिकुलम को बनाते वक्त केवल हमें टीचर्स से ही काम नहीं लेना पड़ेगा, मगर हमको समाज के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि हमारा जो भी करिकुलम पाठ्यक्रम बनेगा वो नीड बेस्ड बनेगा, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनेगा। तो हमको अपना जो करिकुलम हम फ्रेम करने जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट का या पोस्ट ग्रेजुएशन करिकुलम का, इसमें हमको भागीदारी, इंडस्ट्रियलिस्ट की भागीदारी करनी पड़ेगी, हमको जो पॉलिसी प्लानर्स की भागीदारी करनी पड़ेगी, समाज के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की भागीदारी करनी पड़ेगी, तब इस प्रकार का हमारा करिकुलम तैयार होगा। और करिकुलम
विभिन्न विश्वविद्यालयों के करिकुलम में भी हमको एकरूपता लानी पड़ेगी, तभी हम मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात कर सकते हैं। क्योंकि जब किसी छात्र को एक साल किसी एक विश्वविद्यालय से पढ़ करके दूसरे विश्वविद्यालय में जाना है, तो निश्चित रूप से हमको पाठ्यक्रम में एकरूपता लानी होगी। तो हमको विश्वविद्यालयों स्तर पर एकरूपता लानी होगी पाठ्यक्रम में, और एकरूपता के आधार पर ही हमको पाठ्यक्रम को अपने पाठ्यक्रम को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कि एक वर्ष, उदाहरण के तौर पे बीए में एक वर्ष लड़का एडमिशन यदि लेगा, बीए हम 4 डिग्री कोर्स कर रहे हैं, तो पहले वर्ष में हमको उतना लड़के को हम बैचलर की शिक्षा देने की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी कि एक साल के बाद भी वो सर्टिफिकेट लेकर के वो कहीं जाए तो वो कुछ सीख सके बैचलर्स डिग्री के बारे में, और फिर सेकेंड ईयर में कहीं एडमिशन ले सके। तो इस प्रकार हमें कोर्स का डिजाइन करना पड़ेगा, और ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि चौथा साल है बीए, बीएससी या बैचलर डिग्री का, और चौथा साल पूर्ण रूप से शोध को समर्पित है, पूर्ण रूप से वो रिसर्च होगा, उसमें डिसर्टेशन होगा उसमें, जिसमें कि छात्र को अपने रिसर्च करने के प्रति उसमें रुझान पहले से यदि पैदा हो तो वो उसमें चौथा वर्ष वही जाएगा। जिसको रिसर्च नहीं करना है, जिसको जो वोकेशनल ट्रेनिंग ले चुका, कहीं और उसको जॉब करना है, तो 3 इयर्स डिग्री लेकर के ही जा सकता है। और चौथे वर्ष में यदि उसको रिसर्च करना है तो रिसर्च करके फिर आगे भी जाकर के वो एडमिशन ले सकता है मास्टर डिग्री प्रोग्राम में। तो इस प्रकार हमें हमारा जो 4th ईयर का जो डिग्री कार्यक्रम में जो डिसर्टेशन का प्रोग्राम है, उसको भी हमको वो रिसर्च बेस्ड करना पड़ेगा, रिसर्च को फोकस करना पड़ेगा, और हमारा वो रिसर्च क्या होगा, शोध क्या होगा, वो भी हमको निर्धारित करना होगा कि समाज के आवश्यकताओं के अनुरूप शोध करना होगा। ये हमको बहुत ध्यान इसमें रखना है। अभी बहुत जगह क्या हो रहा है, हम बहुत सारे विश्वविद्यालयों में देखते हैं कि जहां पर आधारभूत संरचनाएं नहीं है उस लेवल की शोध करने के लिए, तो हम जो 15 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष पहले जो शोध कर रहे थे वो शोध करते चले आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज आर सेंटर्स फॉर क्रिएशन ऑफ नॉलेज। जो हमारे विश्वविद्यालय हैं ज्ञान सृजन के केंद्र हैं, तो ज्ञान हम वो सृजन करें, सृजित करें जो कि ज्ञान की उपयोगिता कहीं हो सके। और ज्ञान को हमारे लेने वाले कौन हैं? इंडस्ट्रीज हैं, वो पॉलिसी प्लानर्स हैं, समाज के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनको जरूरत है हमारे ज्ञान की। तो हम विश्वविद्यालयों से ज्ञान सृजन करें तो हम ध्यान रखें कि हमारा ज्ञान का उपयोग, सृजित किए हुए ज्ञान का उपयोग हमारे समाज के लोग कर सकें। तो उस प्रकार का रिसर्च हम करें। हम देखें आज की तारीख में भी हम देखें तो पूरे विश्व में देखें तो हम विज्ञान टेक्नोलॉजी में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मगर किसी भी देश की प्रगति का निशाना वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिसर्च, ये सबसे बड़ा पैमाना होता है। तो पूरे विश्व में इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो पब्लिकेशंस हैं वो हम तीसरे नंबर पे हैं, चाइना अमेरिका के बाद। क्वांटिटी की हम बात करें तो मगर फिर भी हम यदि क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में हमको काफी आगे बढ़ना है। हमारे यहाँ भी क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अच्छे शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च हैं, आइसर्स, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अच्छा रिसर्च कर रही हैं, क्वालिटी रिसर्च कर रही हैं। मगर फिर भी जो क्वालिटी रिसर्च पब्लिकेशंस है उसकी संख्या हमें बढ़ानी होगी, क्योंकि संख्या हमें बढ़ानी होगी तभी हम वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रिसर्च एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको कि हमें ध्यान रखना होगा, और रिसर्च को हमें विश्वविद्यालयों में बढ़ावा देना होगा। तो हम बैचलर्स की 4 डिग्री की बात करें, उसके आगे हम जाते हैं मास्टर्स डिग्री में। तो मास्टर्स डिग्री का जो सामान्य पाठ्यक्रम होगा, जैसे 2 वर्ष का चलता है, वो 2 वर्ष की ही व्यवस्था है, मगर उसमें भी पहले वर्ष में मास्टर्स प्रोग्राम में पहले वर्ष में फंडामेंटल टीचिंग की व्यवस्था है और दूसरे वर्ष में रिसर्च की व्यवस्था है। तो वहां पर भी इंटेंसिव रिसर्च, क्वालिटी ओरिएंटेड रिसर्च, क्वालिटी रिसर्च की व्यवस्था, क्वालिटी रिसर्च की बात की गई है। तो मास्टर्स डिग्री में जो लड़का सेकेंड ईयर में पढ़ेगा वो पूर्ण रूप से रिसर्च के प्रति समर्पित होगा। और इस प्रकार विश्वविद्यालयों में जो मास्टर्स प्रोग्राम है वो 3 तरह के मास्टर्स प्रोग्राम चलाने होंगे, ये हमको देखना होगा। जो 3 इयर्स लड़का पास करके आता है उसके लिए 2 इयर्स का मास्टर प्रोग्राम होगा। जो लड़का 4 इयर्स का बैचलर करके आता है उसके लिए 1 साल का मास्टर प्रोग्राम होगा। और इसके अलावे हमें इंटीग्रेटेड
बैचलर और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम भी चलाने हैं। तो इंटीग्रेटेड बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए भी करिकुलम हमको बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारी जिम्मेदारी करिकुलम फ्रेम करने की बढ़ जाती है कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के करिकुलम बनाने पड़ेंगे, 2 इयर्स मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के करिकुलम बनाने पड़ेंगे, 1 साल का डिग्री प्रोग्राम का करिकुलम बनाना पड़ेगा। तो ये तीनों तरह के करिकुलम हमको बनाने पड़ेंगे, निर्धारित करे पड़ेंगे। और इसके अलावा जो बैचलर्स डिग्री का प्रोग्राम है, जैसा कि मैंने कहा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, उसके हिसाब से हर साल का करिकुलम हमको डिजाइन करना पड़ेगा समाज की आवश्यकता के अनुरूप, और दूसरे विश्वविद्यालयों में भी एकरूपता इसके आधार पर रहे, ताकि लड़का यहाँ से ट्रांसफर होकर वहां जा सके, वहां से यहाँ आ सके। इसको ध्यान में रखते हुए हमको एकरूपता लानी पड़ेगी और एक बैलेंस्ड हमारा करिकुलम हमको तैयार करना पड़ेगा मास्टर डिग्री पर। और उसके मास्टर्स के बाद जब हम रिसर्च की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर भी हमको देखने की जरूरत है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पूरे देश में शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की व्यवस्था की गई है। ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होगा, वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पास ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होगा, जिसकी जिम्मेदारी रहेगी पूरे देश के अंतर्गत रिसर्च की फंडिंग करना, रिसर्च की मेंटरिंग करना, रिसर्च को बढ़ावा देना और कोलैबोरेटिव रिसर्च का प्रोत्साहन देना। कोलैबोरेटिव का मतलब कि एकेडेमिया इंडस्ट्री इंटरेक्शंस को बढ़ावा देना, कि समाज में हमारे इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को किस प्रकार के शोध की आवश्यकता है, उस शोध की आवश्यकता को देखते हुए उसका कोऑर्डिनेशन भी करना इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जिम्मेदारी है। अभी तक जो हमारे यहाँ व्यवस्था चली आ रही है बहुत वर्षों से, और डिफरेंट मिनिस्ट्री हैं, उदाहरण के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बहुत सारे जो एक्स्ट्रा मोरल फंडिंग एजेंसीज हैं जिसके द्वारा कि हम फंड पाते हैं और रिसर्च हो रहा है। तो अभी रिसर्च बहुत सारे विश्वविद्यालयों में जो हम देखते हैं, जो 10-15 साल पहले होता था वही पैटर्न पे चलता चला आ रहा है। वो रिसर्च हमारे आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, मगर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के चलते डुप्लीकेसी ऑफ रिसर्च नहीं हो पाएगा, रिसर्च का की डुप्लीकेसी नहीं होगी। उससे क्या होगा कि हम पैसे को सही तरीके से उपयोग करते हुए फोकस्ड वे में हम रिसर्च कर सकते हैं। और यदि मल्टी इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशंस की हम बात करें तो उसमें भी हमको, क्योंकि सारे रिसर्चेस पूरे देश के लोग जो कर रहे हैं, एक पोर्टल पे अवेलेबल होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के यहाँ। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा जो मेगा प्रोजेक्ट्स भी होंगे, जो मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स होंगे, जहां पर कि कई यूनिवर्सिटी उसमें कोलैबोरेट कर सकेंगी, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। उदाहरण के तौर पे हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हमारी एनर्जी क्राइसिस है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, जो मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें कि मल्टी इंस्टीट्यूशनल का कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन होगा, तो उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक सबसे अच्छा, इसमें नेशनल रिसर्च पॉलिसी में जो 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 बात कही गई है कि पूरे देश में रिसर्च को इम्पिटस देने के लिए, रिसर्च को गुणवत्ता में जो बढ़ोतरी करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की व्यवस्था है। और निश्चित रूप से उससे रिसर्च की गुणवत्ता बढ़ेगी, क्योंकि फंडिंग भी होगी और पूर्ण रूप से प्रोजेक्ट का पहले मॉनिटरिंग होगा प्रोजेक्ट का, वो एक्सपर्ट्स के द्वारा। और ये भी कहा गया है कि नेशनल एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा भी उसको प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट किए जाएंगे, और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे उसको फंडिंग होगी। तो हमारी ये विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी बनती है कि हम जो रिसर्च करें वो रिसर्च करें, उसका रेलेवेंस हो। हम रिसर्च करें तो उसमें हम पेटेंट्स कर सकें, जो रिसर्च हो उसको पेटेंट कराएं, और पेटेंट कराएं, जैसे इंस्ट्रूमेंट पेटेंट करा रहे हैं, प्रोसेस हम पेटेंट करा रहे हैं, वो डायरेक्टली यूजफुल हो। क्योंकि हमको अपने देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भरता की तरफ हमको आगे बढ़ना है, तो हमको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, और अपना जो शोध है वो शोध हमारी आवश्यकताओं की अनुरूप हो। हम एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, हम हमारे जो फार्मर्स हैं उसको हम इस्तेमाल कर सकें, हमारी इंडस्ट्रीज है उसको इस्तेमाल कर सकें। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे हम मोबाइल के पार्ट्स, बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मगर कोविड ने हमको सिखा दिया, कोविड ने अपॉर्चुनिटी देके सिखा दिया कि जैसे उदाहरण के तौर पे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहले नहीं बनाते थे, अब इतना बनाने लगे कि हम एक्सपोर्ट तक कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे सामने क्या क्या समाज में जो जरूरतें हैं जिसकी कि हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे विश्वविद्यालयों को उसको प्रोजेक्ट मोड में, मिशन मोड में हमको लाना पड़ेगा कि उस प्रकार के हम रिसर्च करें ताकि हम समाज की आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें।
और आत्मनिर्भर हम बने और आत्मसेंट्रिक नहीं, क्योंकि उसके हमको इतना बड़ा बनना है कि ग्लोबल लेवल पर भी हमको compete करना है अपने प्रोडक्ट्स के द्वारा। तो और वो प्रोडक्ट्स बनाने की विधा हमारे विश्वविद्यालयों से संभव है, विश्वविद्यालयों के रिसर्च के द्वारा संभव है। तो हमको गुणवत्तापूर्वक रिसर्च को आगे ले जाना है और इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में पूरी तरीके से वो व्यवस्था है। और कुछ इसमें व्यवस्थाएं हैं रेगुलेटरी बॉडी की, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कही गई है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास नैक है, नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट, जो बंगलोर में, तो और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। तो जितनी बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इसको एक करके केवल लॉ और मेडिकल को छोड़ करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि रेगुलेटरी बॉडी भी रहेगी और जो कि पैसे के लिए फंडिंग बॉडी भी रहेगी, एक्रेडिटेशन भी रहेगा उसके द्वारा। तो उससे क्या होगा कि हमारे देश के जो विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों में एक रूपता रहेगी, चाहे वो प्राइवेट विश्वविद्यालय हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय हो, एक रूपता बनी रहेगी। और उनका जो करिकुलम का निर्धारण भी होगा वो उसके द्वारा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मदद मिलेगी। तो निश्चित रूप से जो हमारे करिकुलम में एक रूपता आएगी, पूरे देश के स्तर पर एक रूपता आएगी। तो एक्रेडिटेशन के मामले में भी हम आगे बढ़ेंगे और विशेष करके जैसे डिग्री कॉलेजेस के ऑटोनॉमी की बात कही गई है, और उसमें यह भी बात कही गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला की बात की गई है कि मिशन नालंदा के अंतर्गत देश के अंदर 100 विश्वविद्यालय ऐसे खोलने की व्यवस्था है जो कि रिसर्च इंटेंसिव होंगे, कि मुख्य उनका फोकस होगा रिसर्च के ऊपर, शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। और मिशन तक्षशिला के अंतर्गत देश के हर जिले में 2030 तक एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसा खोला जाएगा जो कि मल्टीडिसिप्लिनरी होगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जैसे कि व्यवस्था कही गई है कि हर एजुकेशन जिसको हम यूनिवर्सिटी कहेंगे, वो यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, जिसकी परिकल्पना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने आज से 100 वर्ष पहले की थी। और मालवीय जी का कहना था कि हम कभी भी विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय का अर्थ होता है कि विश्व के अंतर्गत जितना भी विद्याएं पढ़ाई जाती हैं वो एक आलय के अंतर्गत, एक कैंपस के अंतर्गत वो पढ़ाई जाती हो सारी विद्याएं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक उदाहरण है जिसकी स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में की थी। वो भारतीय शिक्षा दूत के तहत उन्होंने पूरे विश्व को एक संदेश दिया था कि विश्वविद्यालय की ये व्यवस्था होनी चाहिए। और उसी प्रकार की विश्वविद्यालय की परिकल्पना इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है कि हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे वो मल्टीडिसिप्लिनरी होंगे। तो आज हमें जो भी हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो उनमें हम देखें कि हम मल्टी डिसिप्लिन, अलग अलग डिसिप्लिन उस प्रकार के खोलें ताकि हम ग्रेजुएशन लेवल पे या पीजी लेवल पे लड़के को अधिक से अधिक हम चॉइस दे सकें। जैसे कि व्यवस्था की गई है कि साइंस का लड़का भी म्यूजिक ले सके, फिजिक्स का लड़का भी हिस्ट्री पढ़ सके। तो हम ये सारे जितने हमारे विषय हैं वो विषय हमें विश्वविद्यालय के अंतर्गत होने चाहिए। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में नहीं है, चाहे बहुत सारे विश्वविद्यालय पहले खुल गए, वो सिंगल डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज खुल गए। तो अब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसमें परिकल्पना है कि मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, क्योंकि जब तक मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं होंगे तब तक हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा, होलिस्टिक विकास नहीं होगा। क्योंकि हम सर्वांगीण विकास की अवधारणा को लेकर के बच्चे के समय से ही चले हुए हैं कि बच्चा जब 3 वर्ष का है तभी से भारतीय मूल्यों और संस्कृति को वो लेते चले, और उसके साथ साथ जितने भी पढ़ने की विधाएं हैं उनको अपनी मातृभाषा में पढ़े। उसके बाद उसका मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका हो। उसके बाद वो विश्वविद्यालय लेवल पर भी जब आता है तो वहां पर भी उसकी पर्सनालिटी का विकास हो, ताकि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहे वो जा सके। क्योंकि हमको ऐसे युवाओं को पैदा करना है अपने विश्वविद्यालयों के द्वारा कि वो 21वीं शताब्दी की जो हमारी ग्लोबल वैश्विक चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करे, और उसके साथ साथ वो छात्र की जड़ें हमारी भारतीयता में हो, भारतीय संस्कृति में हो, उसकी जड़ें भारतीय संस्कृति में हो। और क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया आनो भद्रा कर्तो जंतु विश्वतः, हम नोबल थॉट्स हम कहीं से लें, ज्ञान कहीं से भी लें, ज्ञान कहीं भी हो। मालवीय जी भी कहते थे ज्ञान कहीं भी हो, हमारी खिड़कियां ज्ञान की खुली रहनी चाहिए, मगर हमारी जड़ें भारतीयता में होनी चाहिए। क्योंकि हम कहीं भी जाएं तो हम भारतीयता का
प्रतिनिधित्व कर सकें, हम कह सकें कि हम भारत देश के नागरिक हैं, क्योंकि भारत की मूल्यों को हम आत्मसात करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस प्रकार हमें वैश्विक चुनौतियों का हमें सामना करना है। तो ये इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रोफेसर आलोक जी का, आप सबका, कि आपने हमें यह मौका दिया और आज हम ये सबकी महती जिम्मेदारी बनती है, जो भी हम शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो घोषणा की गई है वो हम उसके एक इम्पोर्टेंट एक घटक हैं, कंपोनेंट हैं और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बिंदु हैं उनको हम आत्मसात करें और इसका हम अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, छात्रों में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, अध्यापकों में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, क्योंकि इनके तत्व हैं, मूल तत्व हैं, इनको हम हृदयंगम करें और इनको हमको आत्मसात करने में, हम लड़कों को इसको बताने में, करिकुलम का फ्रेमिंग करने में हमको आसानी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, for enlightening us on a very important topic, national education policy, sir. Now, I would like to request our special distinguished guest, Shri Hari Borikar ji, the All India University in charge of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, to kindly apprise us on a very important topic, national education policy. Sir. सभी को नमस्कार। आवाज आ रही? जी आ रही आवाज आ रही है सर? जी जी। तो आज के इस वेबिनार में उपस्थित प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी देश के जाने माने शिक्षाविद है और इस लॉकडाउन के दौरान और शिक्षा नीति जब से कैबिनेट ने मंजूर की है उसके बाद एक समाज में व्यापक जन जागरण के लिए लगातार समय देते आ रहे हैं और मैं लगातार अलग अलग वेबिनार में आर.एस. दुबे सर को मैं लगातार देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छी सक्रियता से इस मिशन में लगे हैं और आज आपके साथ में हूँ, ये मेरे लिए भी हर्ष का एक विषय है, मैं अपने आप को मानता हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु डॉक्टर आलोक राय जी से ने जैसे पहले ही कहा कि थोड़े कम समय हमारा मिलना हुआ है, लेकिन फिर भी जितना हुआ ऐसे लगता नहीं है कि बहुत कम समय से हम मिले, ऐसा लगता है कि बहुत पुराने मित्र शायद हम पहले से है, ऐसे लगता है। और आकर्षण मेरे में नहीं है, आकर्षण तो उनके एक्शन में है, आकर्षण उनके विजन में है और इसलिए जिस विजन के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय में या बीएचयू में भी उन्होंने काम किया और लखनऊ विश्वविद्यालय में भी काम कर रहे हैं, तो मैंने कल ही पढ़ा कि एक अच्छा एमओयू भी साइन हुआ है और मतलब लगातार व्हाट्सएप पर नई नई बातें लगातार भेजते रहते हैं। मुझे लगता है कि एक्टिवनेस जो है वो सर का इतना है कि लोगों को पकड़ के रखता है। और वरुण झंझर जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने सही समय पर अच्छे विषय को आपने लिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी इस वेबिनार में जो सब लोग हैं, आप सब लोगों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। आज के इस वेबिनार में जैसे शुरू में विषय आया और आज का दिन सही में वरुण जी और विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छा दिन चुना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आज है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने अपने जीवन का पूरा समय शायद समाज हित के लिए दिया, समाज के विकास में दिया और इसलिए एक अंत्योदय की जो उनको कल्पना थी या एकात्म मानव दर्शन, यह जो एक दर्शन था वो विश्व भर में स्थापित करने के लिए पंडित दीनदयाल जी को लोग जानते हैं। इस पर रिसर्च भी आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। भारत की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आवश्यकता यदि कोई थी तो गरीबी का उन्मूलन होना, अंतिम व्यक्ति तक विकास के सारे रास्ते, विकास की योजनाएं उन तक पहुंचना और केवल पहुंचना नहीं तो उसका लाभ फायदा उन सबको होते हुए देश में, समाज में एक व्यापक परिवर्तन लाने का यह जो एक मन के अंदर उनकी तीव्र इच्छा थी, वो शायद वो दर्शन आज सब लोगों के सामने एक किताब के रूप में सबके सामने है। लोग उस पर विचार भी कर रहे हैं, लोग उस पर नीतियां भी बना रहे हैं, लोग उस पर चल भी रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति भी यदि उस दृष्टिकोण में देखे तो नई शिक्षा नीति में बहुत सारे पहलू ऐसे हैं कि जो अंतिम व्यक्ति तक उसके विकास का मार्ग खोलने वाली ऐसी नई शिक्षा नीति
जो समग्र रूप से शिक्षा नीति है, प्री प्राइमरी से लेकर डायरेक्ट रिसर्च तक, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तक, एक साथ समग्र विचार करने वाली शिक्षा नीति भारत में पहली बार आई है, ऐसे मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। और इसलिए वर्तमान केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, शिक्षा मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग विल पावर सब लोगों ने मिलकर इस शिक्षा नीति को लाने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि अभी समाज में शिक्षाविदों का, शिक्षक कार्यकर्ताओं का, प्राध्यापक लोगों का, छात्र संगठनों का, छात्र संस्थाओं का, सामाजिक संस्थाओं का, इन सब लोगों का ये पहला कर्तव्य होगा कि शिक्षा नीति का अवेयरनेस, एक जागरण, और इसको धरातल पर उतारने के लिए सभी प्रकार के अलग अलग टास्क फोर्स बनेंगे, उसमें सक्रियता से अपनी भूमिका निभाते हुए नए नए प्रयोग इस शिक्षा नीति में जो कंसेप्ट में आए हैं उसको धरातल पर लाने के लिए सब लोग मिलकर निश्चित रूप से करेंगे। तो मुझे लगता है कि वास्तविक में यह शिक्षा नीति बहुत परिणामकारक, देश में फिर से एक बार अपने भारत के युवा को वैश्विक स्तर पर, वैश्विक कंपटीशन में अपने आप को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा कारगर साबित होगी। हम सब लोग जानते हैं कि जैसे पहले शिक्षा कंठस्थ होती थी, फिर ग्रंथस्थ है, फिर एक ढंग से डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, और हम सब लोग देख रहे हैं कि सैटेलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ये भी धीरे धीरे अब उस ओर बढ़ रहे हैं। तो शिक्षा में जो नए नए प्रकार की शिक्षा आ रही है, और लॉकडाउन में जैसे ऑनलाइन एजुकेशन चला, और मुझे ऐसा लगता है कि वैश्विक स्तर पर जो भी आज एक डेवलपमेंट है, जो भी आज एक कंपटीशन है, उसमें भारत के युवाओं को ये वैश्विक टर्मिनोलॉजी ये आनी ही चाहिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, मशीन लर्निंग क्या होता है, बिग डेटा एनालिसिस क्या है, तो इन सारे विषयों को लेकर कंपटीशन आज वैश्विक स्तर पर है। लेकिन उन सारे शब्दों को समझते हुए और भारत की आवश्यकता क्या है, इतना ही नहीं तो विश्व के मानव कल्याण के लिए कौन सा व्यक्ति भारत में निर्माण होना चाहिए, कैसा व्यक्ति निर्माण होना चाहिए, जो एक सकारात्मक माइंडसेट वाला होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट उसका होगा। विश्व को मानवता के आधार पर चलाने के लिए हम किस आधार से व्यक्ति निर्माण करते हैं, मुझे लगता है कि शिक्षा एक बहुत बड़ी भूमिका देश में व्यक्ति निर्माण के लिए निभाती है। और इसीलिए जैसे सर ने अलग अलग विषयों के बारे में, दुबे सर ने कहा है, मैं उस पर ज्यादा विशेष अभी समय नहीं बिताऊंगा क्योंकि वही सारे विषय है। लेकिन जिस प्रकार से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात इस पर हुई है, मतलब स्कूल कॉम्प्लेक्स का एक कंसेप्ट जो है कि जिसमें स्कूल चल रहा है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, तो आज तक शायद आईआईटी का उपयोग या नेशनल इंस्टीट्यूट का उपयोग उस प्राइमरी स्कूल के लिए कभी नहीं होता था। लेकिन इस स्कूल कॉम्प्लेक्स के कंसेप्ट में, स्कूल एजुकेशन में, एक सीमित दायरे के अंदर जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस है या फिर नेशनल यूनिवर्सिटीज है, इन सब के रिसोर्सेस, इन सब के ग्राउंड, इसकी लाइब्रेरीज, इसके लैब्स, और इतना ही नहीं तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, टीचिंग फैसिलिटीज, इन सब का उपयोग इस सभी दायरे में रहने वाले स्कूल के लिए, प्राइवेट स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए एक दूसरे के लिए लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह प्रावधान हम सब लोगों के कभी रहा नहीं है। दूसरी एक बात बहुत अच्छी है, जो है मल्टीपल एग्जिट की बात इसमें की गई है। हमारे यहाँ कई सारे छात्र ऐसे कि जो ड्रॉप आउट, उनको शायद किसी कारणवश शिक्षा छोड़नी पड़ती है, फिर वो पारिवारिक समस्या होगी, आर्थिक समस्या होगी, या फिर भौगोलिक दूरियों के कारण होगा, या दिव्यांग छात्र होंगे कि जो शायद संस्थान तक नहीं जा पाएंगे, इंस्टीट्यूशन तक नहीं जा पाते हैं, या भौगोलिक दूरिया, जिस लेह लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र देखेंगे, या फिर भौगोलिक या जनजातीय क्षेत्र होंगे, अंदर दूर दराज के जंगलों के अंदर भी स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे सारे जो वंचित क्षेत्र है, जो किसी न किसी कारणवश शिक्षा से दूर हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, शिक्षा छोड़नी पड़ती है, ऐसे सारे छात्रों के लिए एक ढंग से मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री यह बहुत एक कारगर कदम है। इतना ही नहीं तो छठवीं कक्षा के बाद में ऑनलाइन ये वोकेशनल कोर्स विषय को जोड़ कर यदि देखेंगे तो मुझे लगता है कि यह शिक्षा नीति एक
बहुत नए तरीके से नई शिक्षा नीति है, उसको वैसे ही हमको मानना चाहिए। बहुत बार लोग कंसेप्ट में मतलब सोचने में ये सोचते हैं कि नहीं अब पुराने शिक्षा नीति का बदलकर नई शिक्षा नीति में क्या लाया है। तो मुझे लगता है कि यह बदलाव करके हमने नहीं सोचना चाहिए। ये नई कंसेप्ट है, नई शिक्षा नीति है, उसको नए रूप में ही हमको स्वीकार करना चाहिए। और इसीलिए जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यह भी एक बहुत अच्छा इसमें छात्रों के लिए प्रावधान है कि जिसमें छात्र कहीं भी पढ़ेगा उसकी एकेडमिक बैंक का एक आईडी बनेगा और उसमें क्रेडिट जो है उसमें प्लस होते जाएंगे। और इसीलिए लखनऊ विश्वविद्यालय में मान लो कोई कॉमर्स पढ़ रहा है तो पेंटिंग करने के लिए किसी दूसरे कॉलेज इंस्टीट्यूशन में उसको जाना पड़ता है, तो वो जा सकता है, वो वहां पढ़ने जाएगा, उस क्रेडिट बैंक में उसकी क्रेडिट वहां पर ऐड होंगे। तो एक ढंग से ये जो मतलब बहुत फ्लेक्सिबल और आसानी से बहुआयामी शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात होगी। या फिर सबसे बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में जो थी, जिसको टारगेट नई शिक्षा नीति ने माना है, वो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। जो शिक्षा में ही लोग प्रवेश करते थे उसका परसेंटेज यदि हम देखेंगे तो आज के डेट में 26.3% केवल शिक्षा में लोग प्रवेश करते हैं। इसका मतलब आज भी 74% छात्र, तो आप 74% छात्र यदि शिक्षा से नहीं जुड़ रहा है तो इसका मतलब आप क्वालिटी एजुकेशन हम क्या चाह रहे हैं, हम किस प्रकार से संभव होगा। ये जो 74% लोग जो शिक्षा में शामिल ही नहीं हो रहे हैं, वो देश के कौन से विकास के पहिए के साथ जुड़ेंगे, वो कैसे अपनी भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कैसे बढ़ सकता है, तो नई शिक्षा नीति ने 2030 तक 50% यह एनरोलमेंट रेशियो बढ़ना चाहिए, इस पर फोकस किया है। मुझे लगता है कि सभी संस्थाओं का यह पहला कर्तव्य रहेगा कि ऐसे एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर क्या प्रयास करेंगे। गांव-गांव में जाकर छात्रों को, पालकों को, पेरेंट्स को हम कैसे समझा सकते हैं कि नहीं इस कॉलेज में शिक्षा में एडमिशन लेनी पड़ेगी, क्लास में स्कूल में एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जीआर बढ़ाना, यह भी शिक्षा नीति ने एक बहुत बड़ा टारगेट सबके सामने रखा है। शिक्षा व्यय बढ़ाने की जो बात लगातार विद्यार्थी परिषद मांग करती रही है और इस सरकार ने 6% शिक्षा व्यय यह होना चाहिए टोटल बजट के। तो मुझे लगता है कि यह भी एक बहुत बड़ी शिक्षा क्षेत्र के लिए उपलब्धि है कि देश में अब शिक्षा को सही स्थान धीरे धीरे मिलना प्राप्त हो गया है। रिसर्च के लिए जैसे सर ने कहा कि रिसर्च और पेटेंट की बात की है, मैं निश्चित रूप से सर की बात का एक बहुत अच्छे से समर्थन करता हूं कि आने वाले दिनों में पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इस पर ही दुनिया आगे चलने वाली है। और उस हिसाब से जैसे मणिपुर में, मैं आपको केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि मणिपुर में यदि आप जाएंगे तो भोजन में बैठते समय 120 प्रकार की सब्जियां वहां पर बनती है। अलग अलग प्रकार की मेडिसिनल प्लांट्स वहां पर है जो शायद बाकी पूरे देश भर में कहीं नहीं होंगे। लेकिन क्या ऐसे एक एक मेडिसिनल प्लांट पर हमने पेटेंट कर लिया क्या? तो शायद हमको करना पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में हमको आगे उस पर बढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉ की बात करेंगे, इंटरनेशनल ग्रीवेंसेस सामने आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है, इसमें भी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एजुकेशन हमको देने पड़ेंगे कि बुलेट से लेकर सबमरीन तक यदि भारत में निर्माण होना है तो इस सबके निर्माण के लिए जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी, जिस प्रकार के कोर्सेज भी हमको नए डेवलप हमारे विश्वविद्यालयों में करने पड़ेंगे, छात्रों को उसके स्पर्धा में हमको लाना पड़ेगा ताकि नई नई इंडस्ट्रीज भारत में, झांसी में, लखनऊ में, आगरा में खुलने वाली है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उसमें काम करने के लिए जो एम्प्लॉय, स्किल एम्प्लॉय होंगे वो भारत के बाहर से आएंगे, यह नहीं होना चाहिए। तो भारत में बैठा युवा ही फिर वो वैज्ञानिक स्तर से डीआरडीओ में काम करने वाला वैज्ञानिक होगा या हर प्रकार के लोग, या भारत के युवा ही कैसे हो सकते हैं इतना क्षमतावान। शायद विकास के इन सारे पहियों के साथ हमको शिक्षा को जोड़ते हुए और नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान आए उनको जोड़ते हुए उसको यथार्थ पर लाने के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों का भी निर्माण हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। 4 अलग अलग प्रकार की रेगुलेटरी बॉडीज भी बनने वाली है।
हायर एजुकेशन ग्रैंड काउंसिल होगी, और एक्रेडिटेशन के लिए जिस प्रकार सर ने कहा तो एनएससी इस प्रकार के एक्रेडिटेशन के लिए भी एक बॉडी रहेगी। तो ऐसे 4 अलग अलग स्टैंडर्ड सेटिंग एजेंसीज रहेगी और फंडिंग एजेंसीज रहेगी कि जिस प्रकार से पूरे शिक्षा क्षेत्र पर एक मॉनिटरिंग किस प्रकार से हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि समय कम है और वरुण जी ने कहा था कि 1 बजे समय शायद कार्यक्रम समाप्त करना होगा, तो इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए, लेकिन पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय की कल्पना को निश्चित रूप से यह शिक्षा नीति साकार करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस शिक्षा नीति के तहत जिस प्रकार से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है, तो मुझे लगता है कि यदि इजराइल का एक छोटा सा राष्ट्र का उदाहरण हम देखेंगे तो 74 लाख पॉपुलेशन आज इजराइल की है, लेकिन इजराइल ने उनके बजट के 4% केवल रिसर्च पर वो खर्च करते हैं। सिक्योरिटी पर ज्यादा खर्च है लेकिन रिसर्च पर 4%। और आज उसका परिणाम यह है कि आज 74 लाख पॉपुलेशन का राष्ट्र लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी होगी या लेटेस्ट वेपन की यदि हम बात करेंगे तो दुनिया भर में इजराइल की यह टेक्नोलॉजी आज एक्सेप्टेड है, लोग उसका स्वीकार कर रहे हैं, वहां से लोग खरीदी कर रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए पूरा देश, पूरी दुनिया आज उसके पीछे जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत भी 136 करोड़ के हम देश है और इसमें जितने भी छात्र संख्या है, इस छात्र संख्या को, इस युवाओं को इस शिक्षा नीति के आधार पर इस प्रकार से हम लोग मिलकर तैयार करेंगे कि वैश्विक स्तर पर भारत विश्व में एक शांति स्थापित करने वाला राष्ट्र और साथ साथ विकास को भी वैश्विक स्तर पर मानवता के विकास के लिए भी हम एक अच्छा व्यक्ति देने वाले राष्ट्र बनेंगे। और मुझे लगता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वैश्वीकरण भारत के शिक्षा क्षेत्र का कैसे होगा, तो नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय फिर से भारत में स्थापित होंगे, इतना विश्वास इस शिक्षा नीति में डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने, श्री मंजूर भार्गव जी ने और डॉक्टर कुरिल होंगे या फिर डॉक्टर मजहर आसिफ होंगे, इन सब शिक्षाविदों ने इस शिक्षा नीति को बनाने के लिए सब लोगों ने मिलकर दिन रात प्रयास किए हैं। M.K. श्रीधर जी होंगे कर्नाटक से, सभी सब लोगों ने मिलकर इस शिक्षा नीति को एक सक्षम रूप से लाने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर भी इस शिक्षा नीति का उपयोग ठीक से करेंगे। यह शिक्षा नीति स्टूडेंट फ्रेंडली है, मतलब शिक्षा का व्यापारीकरण होने वाली शिक्षा नीति, ऐसे कुछ लोग जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह शिक्षा नीति स्टूडेंट फ्रेंडली है। शिक्षा में पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ने वाला है, लेकिन छात्रों के ऊपर शिक्षा का बोझ, व्यय का बोझ, पैसे का बोझ यह कम होने वाला है। SC/ST छात्रों के लिए फेलोशिप, स्कॉलरशिप के प्रावधान भी बढ़ाए गए हैं और इसीलिए इस शिक्षा नीति का स्वागत सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। इतने ही मैं आप सब लोगों से आशा अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, that you have enlightened us on a very important topic of national education policy, and all the intricacies in this connection have been given by the Honorable Vice Chancellor, sir. And when we understand this particular aspect of national education policy, as said by Professor Ramashankar Dubey, sir, that ultimately it is important to understand that this national education policy, this new educational policy, is an inclusive policy which includes each and every aspect. All the stakeholders, be teachers, be the students, all will have to work, all will have to strive hard for the implementation of these policies so that India as a nation can excel for the development of this nation. And as said by Srihari Borikarji, that ultimately that research foundation has a very, very important role to play in the development of this educational sector. And as Borikarji also rightly said, that 6% of the GDP is to be used on the education. Now this policy will be a game changer, and I believe that all aspects as given by Professor Ramashankar Dubey, sir, for the purpose of understanding the impact of patent in patent, etc., for the development of national education policy is a very, very important kind of a criteria. And as given by Borikar, sir,
that medicinal plants and all which are used in Manipur, if they can be used, because we don't have all those patents with us at this point of time, but if we develop that patent aspect for a longer development of this nation, that will be a true sovereign characteristic for this nation. I am extremely thankful to the Honorable Vice Chancellor of Central University of Gujarat, Professor Rama Shankar Dubey sir, that from his very busy schedule, he has given us his time. I am extremely thankful to our distinguished speaker, Sri Hari Porikar ji, that from his very busy schedule, he has given his time, because students are very important stakeholders, and without them, without their approach, it is difficult to understand the national education policy. From the bottom of my heart, I am thankful to my Vice Chancellor, who is always there for all kind of academic endeavors we used to present for the better understanding of human approach. I am thankful to my Vice Chancellor, Professor Alok Kumar Rai sir, for always standing with us. Thank you very much, all of you who are all watching this live on the YouTube University channel. Thank you very much. From the bottom of my heart, I pay and owe a depth of gratitude towards you. Thank you. धन्यवाद। Thank you. With the permission of the chair, I am ending the broadcast. Thank you, sir. Thank you. बहुत अच्छा लगा, बहुत